Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, Know Your Computer. A computer is a device that transforms data into meaningful information. It processes the input according to the set of instructions provided to it by the user and gives the desired output. A computer mainly has two major components, hardware and software. ओके अब आपको पता है कंप्यूटर आपका एक डिवाइस है जो कि डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करता है। ये इनपुट को प्रोसेस करता है जैसे भी उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं, ओके और फिर उसके बाद आउटपुट देता है। सो दो इसके मेजर कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हार्डवेयर, computer hardware is a physical device of computers that we can see and touch, for example monitor, CPU, mouse, joystick, etc. Using these devices, we can control computer operations like input and output. These hardware components are further divided into the following categories, okay, which are कंप्यूटर हार्डवेयर आपके फिजिकल डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जैसे आपका सीपीयू है, मॉनिटर है, एट्सेट्रा। सो अब इनको भी क्या किया गया है कि फर्दर इनको डिवाइड किया गया है कैटेगरीज में। ओके, सो फर्स्ट कैटेगरी इज इनपुट डिवाइसेस। Input devices are those devices with the help of which the user interacts with the computer. With the help of input devices, the user enters a data or information into the computer. This information or data is accepted by the input devices and converted into a computer acceptable format, which is further sent to the computer system for processing. Input devices से आप फेमिलियर हैं, ओके। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम इनपुट देते हैं, लाइक आपका कीबोर्ड है, माउस है, ओके। फिर ये जो इन्फॉर्मेशन या जो डेटा है इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट करते हैं, उसको फिर चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में, फिर वो फर्दर कंप्यूटर सिस्टम में भेज दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। सो लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ सम इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, microphone, optical character reader and barcode reader. All these are input devices. Next, output devices. Output devices are the devices that are used to display the output of any task given to the computer in human readable form. आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं कि आपको आउटपुट जो होता है, जो आपने इनपुट दिया है, फिर उसका जो रिजल्ट होगा दैट इज द आउटपुट, उसको ये डिस्प्ले करते हैं। ओके, सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ सम आउटपुट डिवाइसेस: मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर्स। Storage devices. There are some devices that are used for storage purposes and are known as storage devices. Look at the examples of some storage devices: CD, DVD, hard disk and RAM. Storage devices, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ये इनको storage purposes के लिए यूज किया जाता है। Okay? CPU, Central Processing Unit. The Central Processing Unit is known as the brain of a computer. It is responsible for processing the information provided by the user. Processing is the process of converting entered data into meaningful information. It is always kept in a box known as the CPU box. There are wires connecting all the parts of the computer to the CPU box. अच्छा, CPU आपका कंप्यूटर का ब्रेन होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेसिंग आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका एंटर डेटा कन्वर्ट होता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, और ये आपके हमेशा रखा रहता है आपके CPU बॉक्स में। एंड फिर वायर्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं कंप्यूटर्स के सारे पार्ट्स को CPU बॉक्स तक। CPU is made up of three main parts. They are Arithmetic Logic Unit, that is ALU. Arithmetic Logic Unit performs all calculations in a computer. It is capable of doing arithmetic computations such as addition, subtraction, multiplication and division. It also conducts logical operations such as finding a greater or lesser number and so on. Control Unit, CU. The control unit acts as a supervisor or manager, ensuring that all computer processes are carried out correctly. It directs the operations of all computer components. CPU के आपके 3 मेन पार्ट्स हैं। आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, प्रीवियस क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। सो ALU जो है जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उसको परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में, लाइक आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है। लॉजिकल ऑपरेशन भी ये कंडक्ट करता है, लाइक आपका कि ग्रेटर देन लेसर नंबर को फाइंड करना। कंट्रोल यूनिट ये क्या करता है? कंट्रोल इसका काम करने का है। ये सुपरवाइजर की तरह एक्ट करता है, मैनेजर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जितने भी जो कंप्यूटर प्रोसेसेस हैं उनको ये कैरी आउट करता है करेक्टली। ओके, ALU के 3 पार्ट्स हैं:
आप ऑलरेडी इसके बारे में फेमिलियर होंगे। उसमें है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि अर्थमेटिक कंप्यूटेशन को करता है, लाइक आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस को भी कंडक्ट करता है, जैसे कि ग्रेटर नंबर को फाइंड करना, लेसर नंबर को फाइंड करना। ओके, कंट्रोल यूनिट, जैसे कि इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ये एक सुपरवाइजर या मैनेजर की तरह एक्ट करता है और इंश्योर करता है कि जितने भी कंप्यूटर प्रोसेसेस हैं वो करेक्टली कैरिड आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। Okay, and memory unit, the memory unit holds all of the data and instructions that need to be processed by the CPU. The data and instructions are subsequently passed to the ALU or CU by the memory unit. मेमोरी यूनिट जो है ये जितना भी डेटा इंस्ट्रक्शंस जो है उसको होल्ड करके रखता है, जो कि प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होता है बाय द CPU. Okay, now software, the set of instructions that tells the hardware how to perform a particular task is called software. For example, the body of television is hardware, but the programs you watch on it are examples of software. A computer needs software to work. Unlike hardware, we cannot see or touch software. WordPad, Paint, MS Word, etc. are some examples of software. There are different kinds of software to do different types of work. अच्छा, सॉफ्टवेयर आपके ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हार्डवेयर को ये बताती हैं कि किसी पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है। जैसे टेलीविजन की बॉडी होती है तो हार्डवेयर है, लेकिन जो उसके अंदर प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो सारे आपके क्या हैं, सॉफ्टवेयर है। एक कंप्यूटर को हमेशा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। ओके, और इनको ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। जैसे आपका वर्ड पैड, पेंट, MS वर्ड, ये सारे क्या हैं आपके एग्जाम्पल्स सॉफ्टवेयर के। ओके, लुक एट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देयर यूजेस। MS Word is software used for creating text document. Text document create करने के लिए you will use which software? MS Word. Okay. MS Paint is software used to draw and color beautiful pictures. Tux Paint is also used to create beautiful pictures. MS Paint भी आपका सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ड्रॉ करते हैं और कलर करते हैं। Tux Paint में भी आप ब्यूटीफुल पिक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड स्क्रैच इज यूज टू डेवलप इंटरेस्टिंग गेम्स। स्क्रैच भी आपका सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम को ना डेवलप करते हैं। ओके, फन टास्क, राइट H फॉर हार्डवेयर and S फॉर सॉफ्टवेयर, डू इट योरसेल्फ। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दीज आर नंबर 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड नंबर 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इन सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। A set of instructions built for a certain task is known as application software. It greatly enhances the computer's utility. You can, for example, use the Paint software to draw and color. To type letters and documents, you can use a Word application. MS Excel, Outlook, MS PowerPaint, CorelDRAW, and other regularly used application software are few examples. Okay. अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बिल्ड किए जाते हैं और ये कंप्यूटर की यूटिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं। जैसे कि आप पेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ड्रॉ एंड कलर करने के लिए, लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए आप वर्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा आपके पास और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लाइक MS Excel है, MS PowerPoint, CorelDRAW। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software directs and coordinates the computer's overall operations. It is a computer's cornerstone. You can think of it as your school's principal who oversees and manages all of the school's activities. So system software क्या करता है? कंप्यूटर के जो ओवरऑल ऑपरेशंस है उन्हें डायरेक्ट करता है एंड कोऑर्डिनेट भी करता है। और आप कह सकते हैं कि ये स्कूल प्रिंसिपल की तरह वर्क करता है कि जो स्कूल की एक्टिविटी को मैनेज करता है ना सारा, तो इसी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये काम होता है। ओके, नाउ डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। Number 1, hardware is a physical part computer that causes the processing of data. Software is a set of instructions that tell a computer exactly what to do. Number 2, hardware cannot perform any task without software. 2, the software cannot be executed without hardware. 3, hardware can be seen and touched. Software cannot be touched. 4, hardware is repaired in case of a problem. Software is debugged in case of a problem. Hardware is replaced if the problem is not solved. Software is reinstalled if the problem is not solved. देखिए, हार्डवेयर आपका फिजिकल पार्ट होता है जो कि जैसे कंप्यूटर में जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है, जबकि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हार्डवेयर को बताते हैं कि किस तरह से क्या करना है। ओके, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के परफॉर्म नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। हार्डवेयर को देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, बट आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर को रिपेयर किया जाता है इन केस ऑफ प्रॉब्लम, जबकि सॉफ्टवेयर को डीबग किया जाता है।
हार्डवेयर को रिप्लेस किया जाता है अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो, और सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, रीइंस्टॉल अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो. ओके. Fun task, visit a computer lab and make a list of hardware you found there. Okay, very simple. Go to your computer lab and then make a list of hardware. Okay. Now, operating system. The operating system is a type of software that runs on a computer. An operating system instructs the computer on when to execute with software application. An operating system is exemplified by Windows. To run the application, every computer must have an operating system. अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपका सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर पे रन करता है और ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि कब आपको एग्जीक्यूट करना है, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करना है. और एप्लीकेशन को रन करने के लिए हर कंप्यूटर सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. इमेजिन एन ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज अ ट्रैफिक ऑफिसर फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. A traffic officer instructs automobiles and motorcyclists on when to move, in which direction to travel, and at what pace. Similarly, an operating system instructs a machine on when to launch which software program. देखिए, आपका ना ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रैफिक ऑफिसर की तरह है. ऑफिस जो आपका ट्रैफिक ऑफिसर होता है वो ऑटोमोबाइल्स मोटरसाइकिल्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं ना कि कब मूव करना है, किस डायरेक्शन में, किस स्पीड से. तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मशीन को इंस्ट्रक्ट करता है कि कब किस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को लॉन्च करना है. ओके. कंप्यूटर मेमोरी. Inside a computer, there are many storage places where data is kept permanently or temporarily while the computer works on the data to produce the desired output. This storage area is referred to as the computer's memory. Memory is an important component of a computer. It is similar to the human brain. कंप्यूटर के अंदर आपके बहुत सारे स्टोरेज प्लेसेस होते हैं जहाँ पे डेटा को रखा जाता है परमानेंटली या टेम्पररली. ओके. और ये जो स्टोरेज एरिया इसे कहा जाता है कंप्यूटर्स मेमोरी. सो ये आपका सेम है जैसे आपका ब्रेन होता है ना, मेमोरीज को स्टोर करके रखता है, तो इसी तरह से आपका कंप्यूटर मेमोरी भी होता है. ओके. डेटा स्टोरेज. अ कंप्यूटर प्रोसेसेस इनपुट डेटा एंड स्टोर्स आउटपुट डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स विच आर 0 and 1. Electric circuits carry these bits which are then stored on chips. These chips are found on a computer's motherboard. So computer जो है इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है, आउटपुट डेटा को स्टोर करता है बाइनरी डिजिट या बिट्स की फॉर्म में. वो होते हैं आपके 0 and 1. सो इलेक्ट्रिक सर्किट इन बिट्स को कैरी करते हैं, देन वो आपके चिप्स में स्टोर्ड होते हैं. ओके. और आपको ये चिप्स कहाँ मिलेंगी, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में. इन्फोसोल. A bit is the smallest unit of data that a computer can process and store. In computers, bits and bytes are used to store data. A group of 4 bits is called a nibble. A group of 8 bits is called a byte. Bit आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है डेटा की जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, स्टोर करता है. ओके. और कंप्यूटर्स में बिट्स और बाइट्स का यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए. 4 बिट्स के ग्रुप को कहा जाता है निबल एंड 8 बिट्स के ग्रुप को कहा जाता है बाइट. 1 kilobyte or KB is equals to 1024 bytes. 1 megabyte or MB is equals to 124 KB. 1 gigabyte is 124 megabyte. 1 terabyte is equals to 1024 gigabyte. 1 petabyte is equals to 1024 terabyte. Now, types of memory. There are 2 types of computer memory. These are primary memory, secondary memory. Primary memory. The primary memory of a computer is its main memory. It saves data on a temporary basis. It just saves the data that a computer is currently working on. The CPU has direct access to it. It has a limited storage capacity. When the power is turned off, the data is lost. So, जो प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की, इसकी मेन मेमोरी होती है. ये डेटा को सेव करके रखती है टेम्परेरी बेसिस में. ये जस्ट डेटा को सेव करती है जिसमें आपका जो कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा है. सीपीयू के पास डायरेक्ट एक्सेस होता है, इसका लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है और जैसे ही पावर टर्न ऑफ होगा डेटा विल बी लॉस्ट. ओके. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. दे आर रैम. It's a kind of memory which is usually found on the motherboard. It is used to keep data, programs and program results. It is a write or read memory. It temporarily stores data when the computer is switched off. The data is erased. And ROM, read-only memory, is a type of computer memory that can store data permanently. That is, even after the computer is turned off, data can be read from ROM. However, it is difficult to alter the data. अब देखिए 2 तरह की आपकी प्राइमरी मेमोरी है जिसमें आपका आता है रैम.
ये डेटा, प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम रिजल्ट को रखता है। ये राइट एंड रीड मेमोरी है, ये टेम्पररली डेटा को स्टोर करता है। मीन्स एक बार कंप्यूटर ऑफ हुआ, डेटा विल गेट इरेज्ड। जबकि रीड ओनली मेमोरी में आपका क्या होता है कि डेटा परमानेंटली स्टोर्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर का टर्न ऑफ भी होगा, आपका डेटा लॉस नहीं होगा। आप यहाँ पे डेटा को रीड कर सकते हैं, बट ऑल्टर करना डेटा को थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। ओके, नाउ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज अ कंप्यूटर्स एक्सटर्नल मेमोरी. It is a type of memory that keeps data permanently. Data can be saved even after the computer has been turned off. The CPU does not have direct access to it. It costs less than primary memory. Secondary memory कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी होती है और ये डेटा को परमानेंटली रखती है। कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो गया तो भी आपका डेटा सेव रहता है इसमें, और कंप्यूटर CPU के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। ओके, there are many types of secondary devices. They are hard disk. Since it has a large storage capacity, it is utilized to store a large amount of data. Data can be kept on a hard disk for an extended period of time. Hard disk की जो storage capacity काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जब भी आपको large amount of data आपको store करना है तो उसके लिए हम इसका utilization करते हैं। Okay? Compact disk. It is used to read and write data. It is round in shape. Depending on the use, it is available in a variety of forms. Compact disk यानी कि CD. इसमें हम देखिए डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए यूज़ करते हैं, और राउंड शेप की होती है, जैसे कि आपको मालूम भी होगा, देखा भी होगा आपने CD. ओके, नेक्स्ट इज डिजिटल वीडियो डिस्क, दैट इज DVD. It is a storage device that can hold vast amounts of data. It is used for storing and viewing movies and other files. It is available in 3 different types: read-only, recordable and rewritable. DVD आपका स्टोरेज डिवाइस है, और देखिए ये भी आपका CD की तरह दिखता है, बट इसका स्टोरेज कैपेसिटी CD के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। ओके, आप इसको देखिए जैसे कि कोई मूवी या दूसरी फाइल्स को हम इसमें स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और 3 डिफरेंट टाइप्स में आपको मिलता है: रीड ओनली, रिकॉर्डेबल एंड रीराइटेबल। ओके, नेक्स्ट इज पेन ड्राइव. A pen drive is a portable memory device that stores data permanently and may be deleted when no longer needed. It's a device that's ready to use right away. It connects to a computer via a USB port, that is Universal Serial Bus. It's smaller, faster, more durable, more dependable, with plenty of storage space. सो पेन ड्राइव आपका पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, और उसको जब ज़रूरत नहीं है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। पेन ड्राइव के बारे में आपको पता ही होगा, देखा भी होगा, अपनी यूज़ भी करते होंगे आप इसे। और ये सबसे बड़ी बात है कि पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जा सकता है, बहुत छोटा सा इसका साइज़ होता है, और ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, डिपेंडेबल भी है, और इसमें भी स्टोरेज, आपका जो स्टोरेज है काफ़ी ज़्यादा होता है, स्टोरेज स्पेस। ओके, नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड. A memory card is a digital data storage device. Digital cameras, cell phones, laptops, computers, MP3 players and video gaming consoles all employ this technology. Memory card, see this is the picture of memory card. ये आपका digital data storage device होता है, और इसको बहुत जगह यूज़ किया जाता है, लाइक डिजिटल कैमराज में, सेल फोन्स में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में। ओके ओके, फन टास्क, यू हैव टू सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल. ओके, Reboot. With the help of input devices, the user enters a data or information into the computer. CPU is responsible for processing the information provided by the user. CU directs the operation of all computer components. MS Paint is software used to draw and color beautiful pictures. System software directs and coordinates the computer's overall operations. There are 2 types of computer memory, primary and secondary memory. So here comes the end of this chapter. I hope आपको ये chapter समझ आया होगा students, and exercise की practice अब आप खुद से करेंगे.